وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخل ہو گیا۔ والد صاحب کو بیٹی کے غم نے وقت سے پہلے بوڑھا اور کمزور کر دیا تھا۔ میں ان کی بڑی دلجوئی کرتا، مگر بیٹی کے قتل کا منظر وہ نہ بھولتے تھے، نہ میں ہی بھول سکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے BA پاس کر لیا اور ایک کارخانے میں مجھے کلرک کی نوکری مل گئی۔ اس زمانے میں مجاہدین کشمیر کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ بھارت نے کشمیر میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اپنی فوجیں بھیج کر وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ بھارتی فوج بھارتی حکومت کے اشارے پر کشمیریوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم توڑ رہی تھی۔ کشمیری مجاہدین پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا تھا، عورتوں کو اغوا کیا جاتا، حریت پرست کشمیریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کیا جا رہا تھا۔ والد صاحب یہ سب کچھ اخباروں میں پڑھتے تو ان کا چہرہ شعلے کی طرح تمتمانے لگتا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، مگر مسلمان کشمیری مجاہدین پر انڈین فوجیوں کے ظلم و ستم کی خبریں پڑھ کر وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے، مرنے سے پہلے میں جہاد کشمیر میں ضرور حصہ لوں گا۔ اے خدا، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں مقبوضہ کشمیر میں جا کر مجاہدوں کی شانہ بشانہ کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ ایک رات وہ دکان بند کر کے گھر آئے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا، میاں جی میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ والد صاحب نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے بٹھایا اور کمزور آواز میں کہا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ سردیوں کی رات تھی، گھر میں نوکرانی ہوتی تھی جو گھر کی صفائی وغیرہ کے علاوہ کھانا بھی تیار کر دیتی تھی۔ والد صاحب چارپائی پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے۔ میں ان کے لیے چاول تھالی میں ڈال کر لایا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چاول واپس لے جانے کو کہا۔ میں دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب مجھے آواز دے رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ان کا کمزور چہرہ زرد پڑ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بدن میں خون بالکل نہیں ہے۔ میں گھبرا سا گیا۔ والد صاحب نے آہستہ سے کہا، میں کلثوم کو نہ بچا سکا، مجھے اس کا بڑا غم ہے۔ میں نے ان کا کمزور ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میاں جی اللہ کو یہی منظور تھا، آپ غم نہ کیا کریں۔ والد صاحب نے جیسے میری بات بالکل نہ سنی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا کر میرا بازو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت حیرت انگیز طور پر بڑی سخت تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، مگر میری طرح بستر پر لیٹے لیٹے مت مرنا، کشمیر کے جہاد میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہونا، مجھے دفن کرنے کے بعد امرتسر جانا۔ والد صاحب نے فتح شاہ بخاری کے مزار کے متولی کا نام لے کر مجھے ہدایت کی کہ میں مزار کے شاہ جی سے جا کر ملوں، وہ مجھے جہاد کشمیر کے میدان جنگ میں پہنچا دے گا۔ والد صاحب نے میرے بازو کو اپنی گرفت میں مضبوط کرتے ہوئے کہا، جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے یہ خبر ضرور سنانا، مجھ سے وعدہ کرو۔ میں نے کہا، میاں جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ والد صاحب کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑ دیا اور آہستہ سے بولے، جس کھیت میں میں اپنی بیٹی کی لاش چھوڑ آیا وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا اور اونچی آواز میں کہنا کہ کلثوم اپنے باپ کو معاف کر دینا، وہ تجھے دشمنوں کی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ آیا، وعدہ کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے میاں جی کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میاں جی، وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میاں جی کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ والد صاحب سے کیے ہوئے دونوں وعدے میرے سینے پر لکھے تھے۔ ان دونوں وعدوں کو پورا کرنا میری زندگی کا مشن بن گیا تھا۔ یہی وہ مشن تھا جس کو لے کر میں بھارت میں داخل ہوا تھا۔ چھوٹی بہن پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر شہید ہوئی تھی، وہاں فاتحہ پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچانا، میاں جی کا پیغام اس کی روح کو پہنچانا اور اپنی زندگی جہاد کشمیر کے لیے وقف کرنا، یہ ساری باتیں یہاں تو میں نے پوری تفصیل سے لکھی ہیں، لیکن اس رات فتح شاہ بخاری کے مزار کی کوٹھری میں سید صاحب کے چھوٹے بھائی کو میں نے مختصراً بیان کی اور اس شخص کا نام لیا جس کے پاس میرے والد صاحب نے کہا تھا مزار کا متولی بڑے شاہ جی مجھے پہنچا دیں گے۔ یہ کوئی خاص مجاہد تھا۔ میں اس کا اصلی نام یہاں نہیں لکھوں گا، آپ جو چاہیں اس کا نام رکھ لیں، میں اسے کمال شاہ بلاؤں گا۔ سید صاحب میری ساری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، میرے عزیز تم بڑا نیک مقصد لے کر پاکستان سے آئے ہو، جن صاحب کا تم نے نام لیا ہے میں انہیں جانتا ہوں، وہ کبھی کبھی رات کے وقت پولیس والوں کی نظروں سے چھپ کر میرے بڑے بھائی صاحب کو ملنے جہاں آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، بس آپ کسی طرح مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ سید صاحب کہنے لگے، ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہردا ضلع ہوشنگ آباد مدھیہ پردیش سے آیا کرتے تھے۔
उनके बारे में मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे बताया था कि वो जबरदस्त मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। भारतीय फौज की कमांडो फोर्स में हुआ करते थे। वहां से रिलीज होने के बाद अब हरदा जिला होशंगाबाद के किसी करीबी जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बारे में बड़े शाह साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि वालिद साहब मुझे उस मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो के पास क्यों भिजवा रहे थे। जहाद कश्मीर में शरीक होकर शहीद होना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप फायरिंग करते हुए भारतीय फौज की किसी पोस्ट के सामने आकर खड़े हो जाएं। आपकी फायरिंग से कोई दुश्मन मरे या न मरे, दुश्मन की गोली आपको आकर लगेगी और आप उसी वक्त शहीद हो जाएंगे। आपकी शहादत में किसी को जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन इस शहादत का आजादी कश्मीर की तहरीक को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। वो शहादत तहरीक के लिए बेहद मुफीद होती है जो दुश्मन को किसी फौजी ऑपरेशन के बाद जबरदस्त और दूर रस नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल की जाए। दुश्मन को ऐसा नुकसान मैं कमांडो बनकर ही पहुंचा सकता था, और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में शहादत की सआदत लिखी हुई है तो मैं ये शहादत कमांडो ऑपरेशन के साथ दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद ही हासिल कर सकता था। वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं जहाद कश्मीर में शामिल होने से पहले कमांडो की पूरी तरबियत हासिल करूं। इस मकसद के लिए उन्होंने कमाल शाह को मुंतखब किया था, जो मुझे मजार के मुतवल्ली सैयद साहब के तवस्सुत से ही मिल सकते थे। अब जब छोटे सैयद साहब ने मुझे बताया कि कमांडो कमाल शाह भारत के सूबा मध्य प्रदेश के हरदा जिला में किसी जंगल में रहते हैं तो सूरत हाल मेरे लिए मजीद पेचीदा हो गई थी। मैंने सिवाय अमृतसर मुजेठ के इलाके के हिंदुस्तान का और कोई इलाका देखा ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश किस बला का नाम है और हरदा नाम का जंगल कहाँ है, मगर मैंने कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाने का दिल में फैसला कर लिया था। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश भी थी और मैं भी कमांडो बनकर काफिरों से अपनी छोटी बहन के खून का बदला लेना चाहता था। और अब तो हर वो लड़की जो मकबूजा कश्मीर में काफिरों के जुल्म सितम और तशद्दुद से शहीद होती थी वो मुझे अपनी बहन कुलसूम ही लगने लगती थी। मैंने सैयद साहब से कहा, मैं कमाल शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब ने बाहर कोई आहट महसूस की होगी। उन्होंने मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गए और किसी सुराख में से बाहर देखा। फिर पीछे हटे और मुझे कहा, बरखुरदार इस वक्त रात काफी गुजर चुकी है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे आने से पहले बाहर न निकलना। सैयद साहब चले गए। बंद कोठरी में हब्स और गर्मी जरूर थी, यहाँ पंखा नहीं था, मगर चूंकि अभी गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था इसलिए कोठरी के थोड़े से हब्स और गर्मी ने मुझे ज्यादा देर तक तंग न किया और मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे सैयद साहब ने ही आकर जगाया। मेरा लिबास अभी तक सिवाय सब्ज टोपी और मलंगों वाला ही था। वो अपने साथ मेरे उतारे हुए कपड़े यानी जीन्स, पतलून, जैकेट और जॉगर शूज भी लाए थे। उन्होंने मेरे कपड़े एक तरफ रख दिए और कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम नाश्ते पर बात करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर खुली फजा में आया तो बड़ा अच्छा लगा। दिन काफी निकल चुका था। सैयद साहब मुझे एक दूसरी कोठरी में ले आए जिसका फर्श पक्का और छत भी ऊंची थी। अंदर एक पलंग बिछा था, 2-3 कुर्सियां और छोटी तपाई भी थी, जहां मैंने उनके साथ हलवे पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ते पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जार की बातें करने लगे। कहने लगे, यहाँ वो बात नहीं जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ बराबर की हैसियत रखते थे, मगर अब यहाँ हिंदुओं के गुलाम हैं। हम चाहे कुछ कर लें, भारत की हुकूमत हमें हमेशा शक की निगाह से देखेगी। वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पाकिस्तान का जासूस समझती हैं। तुम पाकिस्तान के मुसलमान हर लिहाज से खुश नसीब हो। तुम एक आजाद मुल्क में रहते हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है, खा कैसी भी हुकूमत है मगर तुम्हारी अपनी हुकूमत है। तुम इस्लाम के रास्ते पर चलकर जिंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आला सरकारी ओहदे सिर्फ हिंदुओं के लिए वक्फ हैं। मुसलमान चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पूछता। नौकरी मिल भी जाती तो घटिया दर्जे की नौकरी दी जाती है। हम भारत के मुसलमान तो हमेशा पाकिस्तान की खैर सगाली की दुआएं मांगते रहते हैं। पाकिस्तान की वजह से थोड़ी बहुत हमारी भी जहाँ इज्जत बन जाती है। नाश्ते के बाद सैयद साहब कहने लगे, मैंने चाय के लिए कह दिया है, चाय पर असली बातें करेंगे। मैंने उनसे पुलिस के बारे में पूछा कि बाहर अब कोई खतरा तो नहीं। सैयद साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कुछ पता नहीं कि बाहर जो मलंग बैठे हैं उनमें से कोई खुफिया पुलिस वाला है। एक मलंग पर मुझे शक था क्योंकि उसकी शक्ल नई नई थी। वो चला गया है, इसलिए फिलहाल तो कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, यहाँ का थानेदार क्या नाम था उसका? शर्मा जी। हाँ, वो तो आपको मेरे बात परेशान नहीं करेगा। सैयद साहब सर को हल्का सा झटक कर बोले, हम चाहे कुछ कर लें
ये इंडियन पुलिस वाले कभी किसी मुसलमान पर एतबार नहीं करते। वो हमें हमेशा पाकिस्तान का जासूस ही समझते हैं। हालांकि तुमने खुद देख लिया है कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन शर्मा थानेदार को कभी यकीन नहीं आ सकता। हम भी उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते, और फिर कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि तुम्हारी तरह से कोई पाकिस्तानी यहाँ आए और हमें उसे छुपाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई यानी बड़े शाह साहब हुआ करते थे, तो उनसे मिलने कभी कभार वही कमांडो मुजाहिद साहब जिला होशंगाबाद के जंगलों से निकल कर आया करते थे। उन दिनों अमृतसर का एक सिख थानेदार हुआ करता था। एक बार वो उनकी बू लेता यहाँ आ गया था और बड़े शाह साहब से उसकी बाबत पूछगिछ की थी, मगर बड़े शाह साहब ने सिख थानेदार की खूब खबर ली थी और उसे ये कहकर मजार से निकाल दिया था कि अगर अब तुम यहाँ आए तो मैं दिल्ली सीधा पंडित नेहरू की बेटी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। बस उसके बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में एक लड़का चाय लेकर आ गया। चाय का दौर चलने लगा। लड़का चला गया तो सैयद साहब कहने लगे, तुम्हारी बात और है मियाँ, तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो। अगर जासूस होते भी तो खुदा की कसम है हम तुम्हें अपने सीने से लगाते। पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मगर तुम एक बुलंद तरीन मकसद लेकर यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे पासपोर्ट पर अमृतसर का भी वीजा लगा होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मगर चूंकि तुम्हारे पास दिल्ली का वीजा था और तुम वहां से छुपकर यहाँ आए हो, इसलिए कुदरती बात है कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लगी होगी। क्योंकि दिल्ली दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तानी दिल्ली का वीजा लगवा कर आते हैं पुलिस उनकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी दिल्ली से बाहर किसी शहर का रुख करे तो फिर वो उसे जासूस समझकर उसके पीछे लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, मगर तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ अब तुम्हें परेशान करने कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। मैंने मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, मुझे ये बताइए कि मैं मुजाहिद कमांडो कमाल शाह साहब के पास किस तरह पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब कहने लगे, मैं तुम्हें हरदा जिला होशंगाबाद तक पहुँचने का रास्ता तो बता दूंगा, मगर उसके आगे तुम्हें खुद कमाल शाह साहब की तलाश करना होगी। मुझे इतना जरूर मालूम है कि हरदा से कोई 10-11 मील दूर दरियाए जब्दा के किनारे साबिक रियासत इंदौर की हुदूद में गोयत नाम का एक गांव है। बस यहीं से वो जंगल शुरू होता है जिसके अंदर कहीं कमाल शाह साहब के लिए अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमने सुना है कि वहाँ वो खास कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को कमांडो की ट्रेनिंग देते हैं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद साहब जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर कोई औरत आई थी। सैयद साहब बाहर निकलकर औरत से कुछ देर बातें करते रहे, फिर अंदर आकर दरवाजा बंद करके मेरे पास बैठ गए। मैंने पूछा, हरदा शहर जिसका आपने नाम लिया है ये कहाँ पर है और यहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी रेलगाड़ी पकड़नी होगी? सैयद साहब ने कहा, मियाँ तुम हिंदुस्तान में बिल्कुल नए नए आए हो। अब तुम्हें क्या बताऊं कि मध्य प्रदेश कहाँ है और क्या है। भोपाल और बम्बई का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। मैंने ये नाम पाकिस्तान में अखबारों और रिसालों में पढ़े हुए थे। मैंने कहा, नाम जरूर सुने हैं, मगर मालूम नहीं कि ये शहर कहाँ पर वाक़ है। सैयद साहब कहने लगे, यहाँ से आदमी बम्बई जाए तो बम्बई भोपाल लाइन पर एक शहर आता है जिसका नाम हरदा है। ये जिला होशंगाबाद का बड़ा अहम शहर है और अनाज की बड़ी मंडी है। यहाँ पैसेंजर ट्रेन भी ठहरती है और एक्सप्रेस ट्रेन शायद थोड़ी देर के लिए रुकती है। बस तुम्हें यहीं जाना होगा। अमृतसर से तुम्हें हरदा का टिकट मिल जाएगा। मैं अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो खुद तुम्हें गाड़ी में बिठा आएगा। आगे तुम्हें खुद एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अभी तक सैयद साहब को अपने वालिद की दूसरी वसीयत के बारे में बताया था कि मेरी छोटी बहन को सिख गुंडों ने फसादात में शहीद कर दिया था और मेरा बाप बेटी की लाश खेतों में जिस जगह छोड़कर मेरे साथ भागा था, मुझे वहां जाकर फातिहा भी पढ़ना है और अपनी शहीद बहन की रूह से वालिद साहब की तरफ से माफी भी मांगनी है। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बोले, ये बड़ा जज्बाती सा काम तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे सुपुर्द कर गए हैं। तुम्हारे पीछे पहले ही खुफिया पुलिस लगी हुई है। कहाँ खेतों में वो जगह तलाश करते फिरोगे? 12 साल गुजर गए हैं इस बात को। मालूम नहीं अब वहाँ खेत होंगे कि कोई बिल्डिंग बन गई होगी। मैंने कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत थी। मैं हर हाल में उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता हूँ। अमृतसर शहर के इर्द गिर्द का सारा इलाका मेरा जाना पहचाना है। जब पाकिस्तान बना तो मुझे उस वक्त काफी होश था। मैं वो जगह पहचान लूंगा जहाँ मेरे मियाँ जी ने मेरी बहन की लाश को जमीन पर रख दिया था। मैं उस वक्त उनके साथ था। सैयद साहब कुछ तजब्जुब में पड़ गए, सिर हिलाकर बोले, बरखुरदार मैं तुम्हें वहाँ जाने का मशवरा नहीं दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो। मैंने कहा, मैं शाम के वक्त जब अंधेरा हो जाएगा तो जाऊंगा। मुझे वो जगह याद है, करीब ही रेलवे फाटक था और अमृतसर शहर के शरीफपुरे की आबादी शुरू हो जाती थी। सैयद साहब कहने लगे, अब शरीफपुरे का नाम सिखों ने सिंहपुरा रख दिया है। ठीक है, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है
तो फिर आज शाम को वहाँ चले जाना, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा। फरमाइए, मैंने पूछा। सैयद साहब ने कहा, अगर खुदा न करे तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो पूछगिछ के वक्त हमारा नाम न लेना। मैंने कहा, आप यकीन रखें, पुलिस मुझ पर कैसा भी तशद्दुद क्यों न करे, मेरी जबान पर आपका नाम नहीं आएगा। सैयद साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सर को हिलाते हुए बोले, भाई तुम यहाँ की पुलिस के तशद्दुद से वाकिफ नहीं हो, खुदा न करे, खुदा न करे। और वो सर झुकाए उठकर चले गए। दोपहर तक मैं उसी कमरे में रहा। फिर सैयद साहब आ गए। कहने लगे, जितना कुछ मैंने अपने तौर पर पता कराया है उससे तो यही जाहिर होता है कि अमृतसर पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम अमृतसर से निकल चुके हो। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ ये काम तुम आज शाम ही कर लो, मगर तुम्हारा अकेले ही जाना बेहतर होगा। मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं इसी कमरे में रहा। जब सूरज डूब गया और शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो मैं सैयद साहब को बताकर मजार से निकल खड़ा हुआ। मैं जीन्स और जैकेट वाले लिबास में ही था। मजार वाले मैदान को पार करने के बाद मैं गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा। मुझे मालूम था कि ये नाला आगे की तरफ जाता है। इस नाले ने मुझे जीटी रोड पर पहुंचा दिया। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, सड़कों पर ट्रैफिक जारी थी। मैं जीटी रोड पर राम तलाई तक चलता गया। यहाँ से मैं बाएं जानिब रेलवे फाटक की तरफ हो गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई खुफिया पुलिस वाला मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। रेलवे फाटक पर आकर मैंने सामने की जानिब देखा, जिधर आगे जाकर मुजेठ जाने वाली रेलवे लाइन जाती थी। यहाँ खेतों की एक तिकोन सी बनी हुई थी। हैरत की बात है कि यहाँ अभी तक खेत ही थे, कोई नई बस्ती नहीं थी। मैं यादाश्त के सहारे इन खेतों में आ गया। चलते चलते उस मकाम पर पहुंचा जहाँ से मेरे बाप ने मुझे और मेरी छोटी बहन कुलसुम का बाजू पकड़कर रेलवे लाइन पार की थी। आगे जो छोटी सी कच्ची मस्जिद हुआ करती थी वो अब वहाँ नहीं थी। अमरूदों के बाग भी वैसे के वैसे ही थे। आगे वो खेत आ गए जहाँ मेरा बाप हमें लेकर भागा था और सामने से एक घुड़सवार सिख घोड़ा दौड़ाता आया और उसने मेरी बहन की गर्दन पर तलवार का वार किया। यहाँ से मेरा बाप मेरी जख्मी बहन को उठाकर खेतों में भागता हुआ चला गया। मैं रोता हुआ उसके साथ साथ भाग रहा था। मैं एक जगह रुक गया। मैं अपने जहन पर जोर डालकर सोचने लगा कि क्या ये वही जगह है जहाँ मेरी प्यारी बहन की लाश हम छोड़ गए थे। पूरा यकीन नहीं आ रहा था। मैं कुछ कयास कर रहा था, कुछ अंदाजा लगा रहा था। शाम का अंधेरा अभी गहरा हो गया था। खेतों पर रात के अव्वलीन अंधेरे की चादर सी फैलने लगी थी। अचानक मुझे चंबेली के फूलों की सी महक आई। मैंने कोई ख्याल न किया। मैंने सोचा हो सकता है इधर उधर किसी खेत में चंबेली लगी हो और उसके फूलों की खुशबू हवा के साथ इधर आ गई हो। मैंने दूसरे खेत में जाने के लिए कदम उठाए तो चंबेली की खुशबू तेज हो गई। बिल्कुल इस तरह लगने लगी जैसे किसी ने चंबेली के फूल मेरे चेहरे के करीब कर दिए हों। मेरी छोटी बहन कुलसुम बालों में चंबेली का तेल लगाया करती थी। मैं वहीं साकित सा हो गया। चंबेली की खुशबू पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी शहीद बहन की रूह मेरे पास खड़ी है। मेरी आंखों में आंसू आए। यकीनन यही वो जगह थी जहां हम कुलसुम की लाश छोड़ गए थे। मैंने दोनों हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कुलसुम, मियाँ जी ने कहा था मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मैयत पे गोरो कफन छोड़ आया। मेरी बहन मुझे भी माफ कर देना। और मैं रोते रोते वहीं खेत में बैठ गया और मिट्टी को हाथ लगाकर अपने हाथ को बार बार चूमने और अपनी शहीद बहन से माफिया मांगने लगा। मैं देर तक खेत में बैठा दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे रोता रहा। जब मेरा गम कुछ हल्का हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता चलता खेत से बाहर निकल आया। उस वक्त चारों तरफ रात का अंधेरा फैल चुका था। मैंने महसूस किया कि चंबेली की खुशबू मेरे साथ साथ आ रही थी। जब मैं रेलवे फाटक पर पहुंचा तो चंबेली की खुशबू पहले से हल्की हो गई। मैं जीटी रोड पर आया तो चंबेली की खुशबू मुझसे जुदा हो गई थी। अपनी शहीद बहन को याद करके मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। मैंने रुक कर पीछे देखा। पीछे अंधेरे में टालियों के दरख्त के हयूले नजर आ रहे थे। मैंने आह भर कर कहा, अलविदा मेरी बहन, अब हश्र के रोज मुलाकात होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।